Recording mode. Is the screen visible, Harsh? No, sir. So now it's visible. Okay. So we have discussed all different type of operations. What are the sharing operation? That is nothing but cutting operations. What are forming operations? What is drawing? And what are the type of the press? And everything is important from examination point of view because this will be covering at least almost 20 marks. Then different type of presses. OBI stands for open bed inclinable. Then this was your shearing theory. And now let's go for the dies, simple type of the dies. So simple die, then compound die. Compound die mein, that is operations are done simultaneously. That is your blanking and piercing. For example, washer and progressive die mein, there are many operations which can be, Sir, yeah, which sorry to can be, disturb. Sir, students are waiting in the waiting. yeah. So in progressive dial, there are many operations which can be done at different stations. Okay. Now specifications of a press. So the important parameter is stroke, press stroke. So what is the distance that is traveled by the ram? The distance traveled by the ram, that is one important, most important parameter. Then die space, that is what is the size of the dial which can be mounted. Then सबसे important is press tonnage. That is what is the tonnage of the press. मेरे पास 1 टन का प्रेस है, मेरे पास 10 टन का है, 500 टन का. LNT में the tonnage which is available that is up to 2000 tons. And number of press strokes per minute. You won't believe, but number of press strokes per minute which is available nowadays is almost up to 3000. So 3000 strokes per minute. So imagine the speeds. uh, Imagine the production rate. It can do 3000 strokes in a minute. Then shut height. This is important from your MCQ point of view. So what is shut height? It is the last time also students failed to answer these two questions in MCQ, and out of 20, almost maximum was 16. One was that pitman, and another is shut height. So the shut height is nothing but the distance from top of the bed say to the bottom of the wrap. So from the top of the bed to the bottom of the RAM with its stroke down and adjustment up. मतलब पूरा हम लोग रैम नीचे लेते हैं, फुल एडजस्ट किया हुआ, कंप्लीटली एडजस्टेड रैम, पूरा उसको नीचे लेते हैं, तो अपने को कितना जगह मिलता है बेड और रैम का बीच में, रैम का बॉटम का बीच में. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द शट हाइट. मतलब आपका जो डाई का जो थिकनेस है, सपोज मेरा शट हाइट अगर 200 है, पूरा मैंने रैम को नीचे लिया है, हाँ, कंप्लीटली एडजस्ट करके, मतलब पूरा जो रैम का जो स्क्रू है उसको पूरा ऊपर लिया है और रैम पूरा नीचे लिया है. तो अगर मेरे को 200 मिलता है गैप, तो मेरा डाई का थिकनेस है वो कम से कम 201 चाहिए. या टू बी प्रैक्टिकल इट शुड बी एटलीस्ट 205 और 210. हाँ, अगर मेरा डाई का थिकनेस अगर सपोज 200 से कम है, 195 है, तो हाँ दे विल बी अ गैप ऐसे. हाँ, सो आपको फिर पैरेलल ब्लॉक लगा के उसको डाई का थिकनेस है वो बढ़ाना पड़ेगा. सो शट हाइट,
press tonnage, then press stroke, that is length of the stroke. These are the three which are very, very important parameters, first parameters. So what are the requirements of the press tool design? मतलब आप जो डाई डिजाइन करते हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या है? सो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, रिजिड, मेंटेनेंस फ्री, ऑपरेशन सेफ होना है. हाँ, it should give proper your dimensional accuracy and so on. So how to select the press? Selection of the press, that will depend upon the size of the workpiece, then material of the workpiece, कितना पावर चाहिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन, क्वांटिटी, ये सारी चीज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ टू सिलेक्ट द प्रेस. So this was again important requirements of press tool design, then how the press is selected. Then another, I don't think it will be asked in the examination, that is cutting forces. How do you select the press? That is how to calculate the press tonnage. So that depends upon the your ब्लैंकिंग फोर्स एंड पंचिंग फोर्स. मतलब आपको ब्लैंकिंग के लिए कितना फोर्स लगेगा या पंचिंग के लिए कितना फोर्स लगेगा और कितने सारे ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा फोर्स आपको ऐड करना है. हाँ, सपोज इफ देयर आर 3 स्टेशंस, लाइक प्रोग्रेसिव डाई में आपका 3 स्टेशन है, तो एक जगह सपोज पंचिंग हो रहा है, एक जगह ब्लैंकिंग हो रहा है, एक जगह सपोज स्लॉटिंग हो रहा है, एक जगह नॉचिंग हो रहा है, एक जगह बेंडिंग हो रहा है. सपोज इट इज अ 5 स्टेशन, तो 5 स्टेशंस में पांचों का पांचों फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट एंड that will give you the required tonnage. So for example, abhi let us calculate the force required to cut a material. So this is given by maximum force. You know that is stress is equal to force upon area. Stress is equal to force upon area. So maximum force will be obviously sheared area into shearing strain. Sheared area. So it is not cross section area. Cross section area is given by pi by 4 d square, yeah, pi r square if it is a circle, or if it is a rectangle, then cross section area will be length into breadth if it is rectangle. Sheared area matlab along the thickness. So if it is circular, then sheared area will be circumference, that is pi d, into thickness. Circumference into thickness, that will be your sheared area. And then shearing strain, that is given by tau. So tau s, now you have to remember this is millimeter. Then shearing strength is Newton per millimeter square. So you will get maximum force, you will get it in Newton. If it is rectangle, then what will be the sheared area? You have to check, you have to calculate the circumference. The circumference will be length plus breadth into thickness. So circumference into thickness, that will be the sheared area. Then what will be the energy required? So this is your force, maximum force. So अगर maximum force आपका suppose 1000 Newton आ गया, हाँ, so 1000 Newton is equal to approximately 100 kg. Correct, no? 100, because 1 kg is equal to 9.81 Newton. बराबर है. So अगर 1000 Newton है या suppose 10,000 Newton है, so 10,000 divided by 9.81 near 10, so that will be 1000 kilogram force, kgf, and that is nothing but 1 ton, approximately 1 ton. Okay, then what is the energy requirement? Energy in the press work or work done to make a cut. So that is E is equal to F max, that is maximum force into how much is the punch travel. So you have this, because you know very well that work done is nothing but force into displacement, and work done is nothing but the energy, isn't it? So now here displacement means we are taking the distance travel or displacement of the punch travel. Okay, so
E is equal to F max into punch travel, right? So punch travel में you have to also consider what is the percentage of penetration, मतलब पंच कितना शीट के अंदर घुस रहा है, स्ट्रिप में कितना पंच पेनिट्रेट हो रहा है. So energy is given by F max into K into T, that is K is the percentage of the penetration which is required to cause the rupture. Okay, so that will give the maximum force, but actual cutting force will be less than the maximum force, and if you want to calculate the actual cutting force, then this is the relation. So you have to divide by, this is percentage of penetration plus shear. I is nothing but the shear on the punch or die. Shear on the punch or die का मतलब क्या है? I will show you what do you mean by shear. So see, this is what is called the shear. अभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि bad news you have to give slowly, जोर का धक्का धीरे से लगाना है. So imagine now, imagine this is punching and this is blanking. Imagine now this punch is completely flat. Now here there is a angle given. Imagine now this punch is completely flat. So what is going to happen? पूरा का पूरा पंच का कांटेक्ट आपका ये जो डाई है या स्ट्रिप है उसके ऊपर, उसके साथ हो जाएगा कंप्लीट. लेकिन इफ यू आर गिविंग दिस एंगल विच इज कॉल्ड द शियर, then क्या होता है, व्हेन इट इज गोइंग डाउन तो फर्स्ट दिस विल कम इन कांटेक्ट, then as it goes down after some time, that is when the punch travels this much distance, इतना, तभी पूरा कांटेक्ट हो जाएगा. लेकिन तब तक क्या होता है, कटिंग पूरा हो गया है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ग्रेजुअल पेनिट्रेशन. मतलब हम एक साथ पूरा एरिया है वो कांटेक्ट में नहीं लाते, स्लोली एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हैं. ओके, so there are, so that's why the energy requirement will be less. Okay, and the punching or blanking will take properly. So there are different, and this is what is called the shear, and these are the ways to reduce the cutting forces. Again, an important question from examination point of view. So how to reduce the cutting forces? You can either use shear on the punch or shear on the die. Now remember, if it is blanking, then shear has to be given on the die. स्टूडेंट हमेशा उल्टा लिखते हैं और फिर पूछते हैं कि सर मार्क्स क्यों नहीं मिला. And if it is a punching, then shear has to be given on the punch. What are the different ways? You can give single shear like this. You can give double shear this way, so that the initial contact point is this and slowly, gradually it increases. Or you can give the radius like this. That is, this is your convex and this is concave, but generally we don't go for these two options, or we don't go for this also. This is most popular, single shear on the punch. Now blanking may also same thing. This is single shear which is most common on the die, and usually this theta, that angle is around 10 minutes or quarter degree, or max to max half a degree, usually 5 to 10 minutes. What you have to see, that you have to see that the area of contact is gradual, that's all. So you don't have to give ऐसा 1 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री इतना नहीं. इतना देंगे तो आपका पेनिट्रेशन लेंथ स्ट्रोक will be increased. So you have single shear on the die, double shear, then same ये concave radius, convex radius. So this is popular and this is popular. Why it is popular? Because this is easy to manufacture. ये जो है वो, it is easy to manufacture. Okay, that's why these two are preferred. Okay, so this way you can reduce the cutting force. In case if you are not, and I know I am going bit fast. In case if you don't understand, please stop me and ask. Please stop me and ask. No need to worry that
कैसा मैं पूछूं, बच्चे लोग हंसेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. सो दिस इज व्हाट योर effect of shear on the cutting force. See, this is gradually the load is increased gradually. एक्स एक्सिस में आपका पंच ट्रैवल है, पंच ट्रैवल, तो पंच इज ट्रैवलिंग एंड देन लोड इज इंक्रीजिंग. ठीक है, पंच इज ट्रैवलिंग. और ये जब भी पेनिट्रेशन हो रहा है ना, तभी at the time of penetration, at the time of penetration. और ये जो है, there is a reduction in the force. हाँ, मतलब when the punch is going up, this is that time your load goes on reducing and finally it becomes zero. हाँ, so that is instant. यह है वो instant है, but there is nothing like instant. That is at t is equal to say 5 seconds, आपका लोड 100 kg है और t is equal to 5 seconds में लोड 0. दैट इज नॉट पॉसिबल, इट विल टेक सम टाइम. बराबर ना. तो कभी भी कौन सा भी वोल्टेज शूट होता है या करंट शू बढ़ता है, तो इट विल टेक फ्यू मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स. यू कैनॉट, हाँ मतलब कितना भी अच्छा होने दो, आप बुलेट ले लो, कौन सा भी ले लो, यू कैनॉट एक्सिलरेट. आपका जो फुल स्पीड है वो 0 सेकेंड्स में नहीं मिलेगा. इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू build that speed, desired speed. Another option for reducing the cutting force is you can stagger the punches. Stagger the punches मतलब क्या? अभी सपोज प्रोग्रेसिव डाई है, तो प्रोग्रेसिव डाई में सपोज 4-5 पंच एक साथ लगाए, तो पूरे के पूरे सपोज 4-5 पंच हम एक साथ कांटेक्ट में लेंगे, तो ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ सर्ज in the requirement of the energy or in the requirement of the force. So that's why हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, मान लो कि अभी ये 2 पंच है, तो हम लोग हाइट है वो थोड़ा कम करते हैं. हाइट थोड़ा हल्का सा डिफरेंस देगा. ये नाउ हियर इट इज शोन 0.4, बट इवन इफ यू रिड्यूस दिस बाय 0.1, दैट इज ऑल्सो, मतलब आप शेयर भी दे दो इसके ऊपर शेयर. हाँ, और इफ यू वांट टू अवॉइड शेयर, देन क्या करो, आप अभी शेयर देंगे तो अच्छा है. सपोज यहाँ पे शेयर दिया 0.1 का, 0.1 मिलीमीटर, तो इसका हाइट है, आप क्या करो 0.2 से कम कर दो, तो ये पूरा कांटेक्ट में आ जाएगा. 0.1 जब भी ट्रैवल करेगा और उसके बाद फिर ये कांटेक्ट में आएगा. एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द स्टैगरिंग ऑफ पंचेस. मतलब आप पंचेस का हाइट है वो थोड़ा हल्का हल्का सा कम करते जाइए, सो दैट एक साथ सारे पंच कांटेक्ट में नहीं आएंगे. आई होप इट इज क्लियर. इफ इट इज नॉट क्लियर, प्लीज आस्क. Another thing is like center of pressure. Center of pressure, it is more or less same as सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जैसे कि आपने टूल बनाया, ठीक है, तो उसका सीजी किधर है, मतलब जो हम लोग रैम में उसको फिक्स करते हैं, टूल है ना, इट इज फिक्स्ड इन द रैम. आई विल शो यू द टूल हाउ डज इट लुक्स लाइक, so that you understand, you get a better idea. Simple press tool I will show. Where is that, where is that, where is that? Yeah, this is a simple press tool. I really don't know how to cover. Lathe milling वगैरह है ना, I think you may do on your own. Lathe milling, drilling. Press tools I will cover up, and unconventional machining also I will cover up. And of course, if the time permits, then I will touch. Lathe, drilling, milling वगैरह क्या simple है, so that even if you read, you will understand. So this is the simple press tool. This is a progressive die. Okay, एक इसका सेक्शनल एलिवेशन है फ्रंट व्यू. जस्ट थोड़ा ध्यान से देखिए इसको. अभी इसमें जो ये जो प्रेस टूल है, इसका जो शैंक है, शैंक, ये वो जो शैंक है वो हम लोग ऊपर फिट करते हैं. अभी ये जो शैंक है वो एग्जैक्टली कहाँ पे इसका लोकेशन है, हाउ, वेयर टू फाइंड आउट लोकेशन. So whether it will be exactly at the center, or whether it will be off center, or whether it will be here, or whether it will be here.
So that location, that is nothing but the center of pressure. Like human body का जो center of pressure है या center of gravity है, that is navel, nabi, navel. That is, if you give support, if you want to remain horizontal हवा में, तो आप आपका जो नाभि है, नेवल है, वहां पे अगर आप सपोर्ट करेंगे, हाँ, और उसके ऊपर आप हॉरिजॉन्टली, इफ योर बॉडी इज केप्ट, देन यू विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम और इन बैलेंस कंडीशन. ओके, सो and press tools kabhi bhi there has to be four views. Now how these four views are, I will tell you here. तो यहाँ पे ये है वो फ्रंट व्यू है, सेक्शनल फ्रंट व्यू. ये है टॉप व्यू, लेकिन कहाँ का टॉप व्यू? व्हेन यू सी फ्रॉम, यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा. दैट इज व्हेन द डाई इज गोइंग अप, वेयर इज द सेपरेशन विल अकर हियर. ओके, यहाँ पे. सो व्हेन यू लुक एट दिस, दैट इज आपका जो डाई का सरफेस है, दिस इज द सेपरेशन. यहाँ से आपका पंच है वो ऊपर जा रहा है. ये सारे पंच है, ये पंच है, ये भी पंच है, ये भी पंच है, हाँ, ये ब्लैंकिंग पंच है, ये लोकेशन है, ये लोकेट करता है, और ये आपका पियर्सिंग है. दिस इज योर पियर्सिंग. पहला क्या होता है? दिस इज फॉर द प्रोग्रेसिव डाई. आई विल एक्सप्लेन दिस. ये प्रोग्रेसिव डाई है. और थ्री स्टेशन प्रोग्रेसिव डाई. तो चार व्यू कैसा बनता है? यहाँ से आप, यहाँ पे आपका सेपरेशन है, यहाँ से ऐसा स्ट्रिप जा रहा है, ये ऊपर अपर, यहाँ से ऊपर जाएगा, दिस रिमेन स्टेशनरी. ये आपका डाई ब्लॉक है. तो व्हेन यू सी, when it goes up, imagine now it is in the up condition, okay, and you are looking here from the top, so you will see like this. ये obviously side view है, और ये जो view है, ये, that is when you see, look from here, top view है ये, it's not a bottom view. When you look from here, यहाँ से आप जब भी देखेंगे तो you will see like this, ऐसा. अभी स्ट्रिप का ट्रैवल पहला देखने का, हाउ द स्ट्रिप इज गोइंग, वेदर स्ट्रिप इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और स्ट्रिप इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ पे स्ट्रिप इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक फ्रॉम हियर से हियर जा रहे हैं, बराबर है. सो जैसा ही स्ट्रिप यहाँ पे आता है तो फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप स्टॉप. स्ट्रिप रुकना मांगता है, बराबर है, स्ट्रिप स्टॉप. बिकॉज आपका जो लेआउट है, स्ट्रिप लेआउट है, उसमें जो आप पंचिंग ब्लैंकिंग वगैरह कर रहे हैं, दैट इज डन एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एज. स्ट्रिप का एज से, स्ट्रिप का साइड से एट पर्टिकुलर डिस्टेंस इट इज डन. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्टॉप. ये जो है, ये जो दिख रहे हैं दो, वो स्ट्रिप स्टॉप है. तो मैन्युअली हम लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रिप ऐसा आता है तो मैन्युअली ये जो स्टॉप आगे लेते हैं, क्योंकि इट इज ऑल स्प्रिंग लोडेड. ये जो दिख रहा है वो स्प्रिंग लोडेड स्टॉप है, वहां पे स्ट्रिप अटकता है. ओके, देन फर्स्ट स्टेज में क्या होएगा, आपका पंचिंग होएगा. ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टॉप है उसको डिसएंगेज करते हैं और स्ट्रिप को आगे लेके जाते हैं. जैसे ही स्ट्रिप आगे जाते हैं तो ये जो है लोकेटिंग पंच, वो क्या करता है, जो स्ट्रिप में जो ऑलरेडी होल हो गया है पियर्सिंग, उसके अंदर घुस जाता है. हाउ टू आइडेंटिफाई लोकेटिंग पंच एंड कटिंग पंच? इफ यू कैन सी, देखो मैं जूम करता हूँ 200%. यहाँ पे देखिए, ये जो लोकेटिंग पंच है इसको ऐसा रेडियस है, और ये जो है पियर्सिंग पंच, ये पूरा शार्प है. दिस इज शार्प. तो लोकेटिंग पंच जो क्या होएगा, वो जो स्ट्रिप में ऑलरेडी यहाँ पे जो होल हो गया है उसमें जाके अंदर जाएगा, और वो क्या करेगा, बराबर स्ट्रिप को लोकेट करेगा. ओके, एंड देन दिस पंच, इसमें हाइट डिफरेंस रहता है, तो देन दिस पियर्सिंग पंच विल पियर्स द होल. ओके, सेकंड होल. ओके, so that's why this distance, pitch, this for the pitch,
This will be decided by the pitch which is given in the drawing. फिर लोकेशन हो गया, ये सेकंड होल हो गया, फिर वापस ये ऊपर गया, फिर वापस आपने स्ट्रिप को आगे लिया, मैनुअल स्टॉप है, स्टॉप से आपने स्ट्रिप को स्टॉप किया, बराबर है। देन वापस जब भी नीचे आ रहा है, स्ट्रिप आगे आ रहा है, हाँ, ये लोकेट करता है। ये जो मैनुअल स्टॉप रहता है वो रफली लोकेट करता है, अंडरस्टैंड, इट विल लोकेट रफली, मतलब विद इन प्लस माइनस 0.5, बिकॉज इट इज मैनुअल। ये जो लोकेटिंग पंच है वो प्रिसाइजली होल में जाएगा, ऑलरेडी पियर्स्ड होल, और जो स्ट्रिप है उसको प्रॉपरली लोकेट करेगा। ओके, देन थर्ड स्टेज में क्या होगा, ब्लैंकिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट इज योर ब्लैंकिंग। कभी कभी क्या होता है, ब्लैंकिंग, ये जो ब्लैंकिंग पंच है उसके अंदर ही हम लोग लोकेटिंग पंच छोड़ देते हैं। सो दिस स्टेज, ये जो सेकंड स्टेशन है, दैट कैन बी अवॉइडेड। सो ये जो है, there are two punches. One is this, that is blanking punch, and another is locating punch. One is your blanking punch and another is locating punch. हॅलो, मी 411 मध्ये आहे. So what it does, this, it has two advantage. So this punch will locate it and this blanking will do the blanking. Now once all these three operations are done, then you don't need stops. Then आप क्या करते हैं, जो stops है उसको पूरा disengage करके रख देते हैं. Then the location will be done by this punch always, and then it continues. एक बार, तो पहला स्ट्रोक में आपको कंप्लीट कंपोनेंट नहीं मिलेगा, सो यू नीड 3 स्ट्रोक्स। पहला स्ट्रोक है ना, तभी क्या होएगा, खाली ये होल पंच होएगा, दूसरा इसमें क्या होता है, लोकेट होता है, और ये होल पंच होता है, और तीसरा स्टेज में जब थर्ड स्ट्रोक आएगा तभी आपको वो ब्लैंक मिलेगा और पंच मिलेगा। मतलब टू गेट अ फर्स्ट प्रोडक्ट यू नीड 3 स्ट्रोक्स, और थर्ड स्ट्रोक ऑनवर्ड्स आपको आपका वॉशर मिलेगा विद द ब्लैंक एंड विद द होल। सो ये आपका साइड व्यू है, दिस इज सेक्शनल फ्रंट व्यू, एंड दिस इज top view, that is along the parting line or separation line, and this is the top view from your connection gaya kya? Hello, can you see? No, sir. No, there was a connectivity issue, तभी से नहीं दिख रहे। नहीं, अभी अभी गया सर। अभी हाँ, नाउ आ गया वापस। नो सर। No, sir. नो, वेट,
मोमेंट सपोज अगर कनेक्शन जाता है ना, कनेक्टिविटी, तो जस्ट लेट मी नो. नाउ यू कैन सी नो. Yes, sir. या, थैंक यू. सो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है या सर्कुलर कंपोनेंट है, सो देर इज नो प्रॉब्लम. But if it is say irregular shape component, if it is not symmetrical, then you need to calculate. So there is a procedure, and it is very simple calculation. How to find out x bar and how to find out y bar. So just remember this formula: L1 x1 plus L2 x2. L1 stands for the length, and x1 stands for the center of gravity. Similarly, y bar. This is nothing but the CG in, that is coordinate of center of pressure in x direction and coordinate of center of pressure in y direction. Okay, x distance and y distance, right? And I will show you how to do calculate the center of pressure. Okay, don't worry. There are different components. हाँ, blanking dies में मतलब die block मतलब जो नीचे का die है वो. कैप स्क्रू मतलब एलन कैप स्क्रू या एलन बोल्ट, एलन नट एंड बोल्ट. डॉयल पिन जो है वो हम लोग अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं. डॉयल पिन. पंच, यू नो, पंच मतलब पियर्सिंग पंच, देन ब्लैंकिंग पंच. डाई ओपनिंग मतलब डाई कितना ओपन करने का है अपने को. स्ट्रिपर मतलब क्या, वो स्ट्रिप को होल्ड करके दबा के रखते हैं, सो दैट जब भी पंच ऊपर जाता है, दैट टाइम इट डजंट लिफ्ट्स द स्ट्रिप. पायलट मतलब गाइड पंच, मतलब जो स्ट्रिप को लोकेट करता है. अभी मैंने बताया पायलट पंच. स्टॉक मतलब स्ट्रिप एंड स्टॉप. जब भी पहला स्ट्रोक हम लोग लेते हैं, पहले एक दो स्ट्रोक, तभी अपने को स्ट्रिप को कहाँ पे तो रुकाना रहे. वी नीड टू स्टॉप द स्ट्रिप. सो मैन्युअली हम लोग स्टॉप करते हैं. ओके, it can be manually or it can be automatic stop also, but that is required only for initial, in the beginning, पहला 3-4 स्ट्रोक में. देन क्या आपका गाइड पंच है वो स्ट्रिप को लोकेट करते रहते हैं. नॉकआउट मतलब क्या, आपका स्ट्रिप है वो जो कंपोनेंट है उसको इजेक्ट करना है, उसको हम लोग नॉकआउट बोलते हैं. एंड देन प्रेशर पैड्स. ओके, so pressure pads is nothing but pads which are used to press. थोड़ा कंपोनेंट्स को हल्का सा दबा के रखते हैं वो. एंड प्रेशर पैड्स आर यूज्ड व्हेन यू आर डूइंग ड्राइंग ऑपरेशन. जब भी हम लोग ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं तभी प्रेशर पैड यूज करते हैं. तो प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द प्रेशर डैश. जब हम लोग ड्राइंग ऑपरेशन यूज करते हैं तभी वो जो प्रेशर है ना, इट इज वेरी क्रिटिकल. मतलब आपको स्ट्रिप को या जो इन केस ऑफ ड्राइंग वी कॉल द ब्लैंक, तभी स्ट्रिप नहीं यूज करते, ब्लैंक. पहला हम लोग को क्या ब्लैंक कट करना पड़ता है डिजाइन. मतलब अगर आपको एक कप बनाना है 50 डायमीटर और 100 मिलीमीटर लंबा, 50 डाया बाय 100 mm लॉन्ग, देन यू नीड टू हैव अ ब्लैंक फर्स्ट. और वो जो ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेशन बोलते हैं उसको ब्लैंक डेवलपमेंट बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड द ब्लैंक डेवलपमेंट, राइट. सो हम लोग को ब्लैंक रखते हैं और ब्लैंक को यू हैव टू होल्ड इट. So the holding pressure is such that it just nicely holds the blank. So the pressure is such that when the drawing punch is going down, it should allow, you know, the blank to descend down. मतलब blank है वो नीचे जाना मांगता है, then only the drawing operation होएगा. नहीं तो क्या, अगर blank को अगर rigidly पकड़ के रखेंगे तो क्या होएगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो जाएगा, पियर्सिंग ऑपरेशन हो जाएगा. एट द सेम टाइम उसका जो होल्डिंग प्रेशर है, इट शुड नॉट बी टू लेस ऑल्सो, नहीं तो क्या ब्लैंक इधर उधर भागेगा. सो द ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर विच इज गिवन बाय प्रेशर पैड इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन केस ऑफ ड्राइंग ऑपरेशन, राइट. This is just a thumb rule, the die block thickness. That is how to calculate the die block thickness.
बेस्ड ऑन द ब्लैंक डायमीटर. सपोज अगर ब्लैंक डायमीटर या ब्लैंक पेरीमीटर, इफ इट इज रेक्टेंगुलर, so if the perimeter आपका या circumference is more than 75, actually यहाँ पे mistake है, it should be less than 75, then thickness should be around 20 mm. Then 75 और आपका 10 इंच, 10 इंच nothing but 250 approx. तो thickness should be 25 mm, and 10 इंच के ऊपर है, if it is more than 10 inch, then around 30 mm. Then strip layout is very important when you want to reduce the scrap. अगर आपको scrap reduce करना है तो आपको layout है वो ठीक से करना है. layout like for example this, ये मेरा component है, this is my component. Now if I do the punching like this, ये सारा वेस्ट है, मतलब I want to do blank, मेरे को blank चाहिए, मेरे को blank चाहिए, ठीक है. Operation is blanking. So if I am doing it like this, so this will be waste, ये पूरा waste है. So the best layout is like this. I will do the blanking like this. अभी देखो आपका स्ट्रिप का वेस्टेज है वो काफी कम हो गया. Only what happens in this case, आपका जो टूल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पंच लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 पंच बिठाना है. You have to fix up 2 punches like this. So टूल डिजाइन हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट it compromises the strip utilization, because after all when you are making 1 lakh pieces or 1 million pieces, so that time अगर strip utilization, अगर यहाँ पे अगर आपका strip utilization is only 50% and here if it is 90%, then आपका टूल कॉस्ट है वो 1 लाख पीस में ही निकल जाता है, बिकॉज फाइनली आपका रनिंग कॉस्ट भी कम होना है. अंडरस्टैंड नो? टूल कॉस्ट बोलो या मशीन कॉस्ट बोलो, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट, दैट इज वन टाइम कॉस्ट. लेकिन इफ योर रनिंग कॉस्ट इज मोर, देन व्हाट इज द यूज? मतलब आप 2 लाख का मशीन ले लो, सपोज आपने 5 लाख का मशीन लिया, लेकिन आपका उसमें रनिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा जाता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल गो फॉर 15 lakhs मशीन, लेकिन उसमें रनिंग कॉस्ट कुछ कम है. ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का ले लो एग्जाम्पल. हाँ, मैंने 5 लाख का गाड़ी लिया और उसमें मेरे को खाली 5 किलोमीटर ही मिल रहा है माइलेज, और मैं 10 लाख का गाड़ी ले रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरे को 17-18 किलोमीटर मिलता है माइलेज, तो मेरा रनिंग कॉस्ट उसमें कम है. तो डेफिनेटली आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग 10 lakhs, क्योंकि अगर मेरा आराम से मतलब 10 साल तो गाड़ी चलता ही है, 10 years, तो मेरा जो है वो एडिशनल 5 लाख वो आराम से निकल जाता है पहला ही फ्यू ईयर्स में. तो सेम थिंग हियर. So utilization, strip utilization is very important. So that's why this fixing of the layout, strip layout, is very critical. And you need to calculate the strip utilization. मतलब आप क्या करने का, ऐसा layout लेने का, ये layout, ये layout, ये layout. You can think of some more also. And for every layout you work out, you calculate the strip utilization कितना percentage है, and जिसमें ज़्यादा रहेगा that you have to select, and then accordingly you have to design the die. तो जब भी आप पंच लोकेशन देते हैं या तो तभी आपको ये थोड़ा हल्का सा देखने का है, ये स्ट्रिप है तो 2 पंच के बीच में कितना गैप रखना है.
साइड से कितना रखना है, एंड से कितना रखना है. सो जनरली वी टेक इट इक्वल टू थिकनेस. मतलब अगर 2 mm का थिकनेस है तो दो पंच के बीच में हम लोग 2 mm लेते हैं, या साइड से यहाँ से 2 mm, यहाँ से 2 mm ऐसा रखते हैं. हाँ, मीन्स सपोज इफ दिस इज 25, मेरा ब्लैंक अगर 25 का है, सो मेरा स्ट्रिप विड्थ विल बी अराउंड 28, अगर 1.5 लेते हैं तो. दीज आर गाइडलाइन. मतलब अगर आपका मटेरियल थिकनेस 0.8 है तो ये बी आपको कितना लेना है, 0.8. अगर स्ट्रिप का थिकनेस, मटेरियल थिकनेस मतलब स्ट्रिप को ही हम लोग स्टॉक बोलते हैं. स्टॉक, नॉट शेयर्स. यू आर नॉट इनटू कमोडिटी मार्केट. स्टॉक इज नथिंग बट स्ट्रिप. So if the thickness is 0.8 to 3.2, then B is equal to, that is this B is equal to thickness itself. मतलब अगर 1 mm thickness है तो this you take 1 mm, like that it is. So once you decide upon the layout, then you have to calculate the utilization. And how to calculate the utilization? For that you need to calculate number of components. कितना components आपको मिल रहा है, कितना components आपको. अगर इसमें आपको 50 component मिल रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है, सपोज ये स्ट्रिप है सपोज 25 विड्थ और 2000 मिलीमीटर लॉन्ग, और इसमें अगर आपको 50 मिल रहा है और इसमें अगर 100 मिल रहा है तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा है ना. तो यू टू गो फॉर दिस लेयर. सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपको निकालना है. सो स्ट्रिप यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं? यू नो द एरिया ऑफ वन ब्लैंक. सपोज मान लो कि एरिया ऑफ द वन ब्लैंक इज से 50 स्क्वायर मिलीमीटर. सो यू कैलकुलेट कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सपोज 100 है. सो टोटल ब्लैंकिंग एरिया कितना हो गया, 100 into 50. सो that is 5000 स्क्वायर मिलीमीटर divided by area of the strip, divided by the area of the strip, uncut strip, uncut. So that will give you the utilization, percentage utilization of the strip. Hello? कॉलेजमध्ये किती वाजेपर्यंत यार? 3 वाजेपर्यंत. किती वाजेपर्यंत? आता माझे काका येतील, ते एलओआर कार्डचे प्रिंट घेतला होता, ते फक्त साईन घेऊन जा. हा, मी देतो एलओआर. मी इथे 411 मध्ये असेल. हा, 411 नाही, कुठे ह्याच्यात असाल ना तुम्ही? चौथ्या माळ्यावर स्टाफ रूममध्ये. स्टाफ रूम मध्ये, नाही तर 411 मध्ये. आपली आई इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग लॅब आहे ना तिकडे लेक्चर साठी. ठीक आहे, चालेल चालेल. हा, कारण मी काल प्रिंट घेऊन ठेवला योगिता मॅम कडून, ते फक्त येतील आणि साईन करतील. 1% लावायचं. नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. बाकी ठीक आहे ना तुझं? So now bar, depending now once the blank is cut, okay, you just take that blank in hand and you see if there is no bar. bar मतलब क्या, एक हल्का सा मटेरियल है ना, वो नीचे से बाहर आ जाता है कॉम्पोनेंट के बाहर. So if you are feeling that by hand, then you can understand that your punch is not sharp. You need to regrind it. So जितना bar ज़्यादा, it means your punch is becoming blunt and blunt. Okay. अगर if there is no burr at all, that means your punch is very sharp. I said, like suppose if you have a sharp blade, a sharp छुरी, then you get a clean cut. आपको एकदम clean cut मिल जाता है. नहीं तो अगर ब्लंट सीजर ले लो, ब्लंट ब्लेड ले लो, तो यू डोंट गेट अ क्लीन कट. आपको मतलब यू आर अप्लाइंग प्रेशर एक्चुअली कटिंग के लिए. सो इफ द पंच इज शार्प, द प्रेशर रिक्वायर्ड विल बी लेस. कैप्स को मालूम है आपको? एंड रिमेंबर आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जब भी आप बोल्टेड जॉइंट यूज करते हैं तो थ्रेडिंग खाली एक में ही करना है. यू हैव टू डू द थ्रेडिंग ओनली इन वन पीस. Whenever 2 pieces has to be joined, I have seen 90% students showing threading in both the pieces. 90% स्टूडेंट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि
100 में से 4-5 स्टूडेंट खुद का करते हैं और बाकी का सब कॉपी करते हैं, तो उसमें से एक स्टूडेंट का बराबर रहता है, बाकी का 3 का मिस्टेक रहता है, और सब कॉपी करते हैं तो सारे के सारे रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं. सो दैट इज द इश्यू. कुठे आहेत ते? थँक यू. So that's why you need to show threading. Threading has to be done only in one piece. और यहाँ पे जो है, here it will be free hole. Remember, यहाँ पे free. अगर सपोज 8 का पंचिंग है, सॉरी 8 का थ्रेडिंग है, so here there will be a tapping of 8 and then there will be a free hole of 8.5. और ये जो काउंटर बोर्ड दिखा है जिसमें कि कैप्सूल का हेड बैठता है, एरन कैप्सूल का हेड बैठता है, वहाँ पे दैट इज ऑल्सो फ्री होल. So if it is M8, usually the head is 2 times, so 16 रहता है, तो you have to have a counter bore of 17. तो ये जो हेड है और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसा 2 लाइन दिखेगा, यहाँ पे भी 2 लाइन दिखेगा, और यहाँ पे भी थ्रेडिंग लाइन दिखेगा. Now purpose of dowel is the alignment, properly alignment, okay, of 2 plates. तो dowel hole जो रहता है वो rimmed रहता है, rim. It is drilled and rimmed. It has to have a good finish. Dowel pin कैसा रहता है? It is ground. Grind किया रहता है dowel pin. It is always ground. So it aligns the 2 pieces. So dowel is always hardened and ground, and you get dowels ready-made. It's a ground pin, and it is available in 6, dia 6, dia 4, dia 8, dia 10. So depending upon आपका tool का size, you have to select the dowel pins. ठीक है? Here अभी क्या, you cannot cover up design calculations, but I am trying to be brief overview इसमें, because I understand that you should learn this more carefully. There is stripper. So stripper का function क्या है? When the punch is going up, so that time क्या करता है, ये जो स्ट्रिप है, ये जो ब्लैक किया है, उसको भी लेके जाता है साथ में. तो ये जो स्ट्रिपर है वो इसको दबा के रखता है, मतलब इट विल नॉट अलाउ दिस स्ट्रिप टू लिफ्ट अप. Imagine this stripper is not there. When the punch is going up, वो स्ट्रिप को ऊपर लेके आता है, पूरा स्ट्रिप को. एंड स्ट्रिप तो बहुत लंबा है, परपेंडिकुलर टू दिस. So in that case, what will happen? Accident. स्ट्रिप इधर उधर भागेगा. This is called the strip guide या stock guide. अगर आपका width of the strip is say 25, तो ये जो stock guide है वो 25.5 रहता है. तो strip gets guided properly width wise, मतलब इधर उधर जाएगा नहीं, भागेगा नहीं. तो दिस इज योर फिक्स्ड स्ट्रिपर. फिक्स्ड स्ट्रिपर क्या रहता है? इसको बोल्ट किया हुआ रहता है. इट इज बोल्टेड टू दिस डाई ब्लॉक. फिक्स्ड स्ट्रिपर. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फ्लोटिंग स्ट्रिपर. फ्लोटिंग स्ट्रिपर या ऐसे है फ्लोटिंग स्ट्रिपर. इट इज स्प्रिंग लोडेड. फ्लोटिंग स्ट्रिपर इज स्प्रिंग लोडेड. जस्ट अ मिनट. हेलो हेलो हेलो. So floating stripper is spring loaded. Generally we use fixed stripper only. These are the differences in the fixed stripper and floating stripper. It is written in very simple languages, so even if you read it, you will understand it. I am just giving you the basic inputs. ये stripper है. How to hold a punch? So these are the different ways of holding the punch. यहाँ पे पंच है, डायरेक्टली इसको ऐसा बोल्टिंग करके फिक्स किया है. इधर और एक पंच प्लेट लगा है. तो पंच प्लेट में क्या किया, ऐसा काउंटर संक किया है और होल्ड किया है, और फिर उसमें से पंच को डाल दिया है और पंच प्लेट को होल्ड किया है. दिस इज एप्लीकेबल व्हेन, अगर सपोज पंच, इफ द पंच साइज इज स्मॉल, मतलब अगर सपोज 10 mm का पंच है, 10 mm डाया, तो उसमें अपने को वी कैनॉट हैव 8 mm का बोल्ट, 6 mm का भी बोल्ट नहीं डाल सकते, बिकॉज 6 mm का डालेंगे तो 10 mm डायमीटर है, तो दोनों साइड से 2-2 मिलीमीटर बचेगा.
तो 2-2 मिलीमीटर बचेगा तो वो पंच फेल हो जाएगा। मिनिमम आपको 3 का माया मतलब थिकनेस चाहिए। सो अगर 10 डायमीटर का पंच है, सो यू कैन यूज 4 M4 का बोल्ट। M4 का बोल्ट इट इज वेरी पतला। इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस अरेंजमेंट, मतलब आप एक पंच प्लेट ले लो, ये पंच प्लेट के अंदर ये पंच डाल दो और पंच प्लेट को फिक्स कर दो पंच होल्डर के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रूज। सेम हियर ऑल्सो। हाँ, अभी यहाँ पे कैसा है, पंच को क्या किया है, पंच छोटा है तो हम लोग क्या किया है, पंच को ऐसा एक ऊपर से एक फ्लैंज शेप दिया है, फ्लैंज शेप कंस्ट्रक्शन, और फ्लैंज को हम लोग होल्ड किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पंच का जो रॉ मटेरियल साइज है वो बढ़ेगा, मतलब आपको ये यहाँ पे अगर सपोज ये 10 है तो ये एटलीस्ट 25 चाहिए, तो पूरा रॉ मटेरियल आपको 25 डायमीटर का लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है, बट मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि ये एक अलग मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, ये पूरा एक ही मटेरियल यू हैव यूज्ड। सो दीज आर द वेज फॉर फिक्सिंग द पंचेस। एंड देन पायलट मतलब क्या, टू लोकेट द स्ट्रिप, जैसे कि मैंने प्रोग्रेसिव डाई में दिखाया, टू लोकेट द स्ट्रिप द पायलट इज यूज। ये पायलट हमेशा देखो, देयर हैज टू बी अ टेपर और देयर हैज टू बी अ रेडियस। आपको रेडियस है, रेडियस देना है पायलट को, so that it will locate the strip। स्टॉप मतलब स्ट्रिप को स्टॉप करने के लिए। सो दीज आर द डायरेक्ट पायलट एंड इनडायरेक्ट पायलट। इनडायरेक्ट पायलट कैसा रहता है, ब्लैंकिंग पंच है उसमें ही फिक्स करते हैं, और डायरेक्ट पायलट है वो सीधा बाहर आता है। दीज आर स्टॉप मतलब स्ट्रिप को स्टॉप करने के लिए। देखो अभी यहाँ से स्ट्रिप आ रहा है और इधर एक ऐसा स्टॉप है, बटन स्टॉप, तो यहाँ पे जाके अटकता है, पंचिंग हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली स्ट्रिप को थोड़ा सा उठाते हैं एंड वापस स्ट्रिप को आगे धक्का मारते हैं। सो दिस इज व्हाट इज योर स्टॉप इज। नॉकआउट मतलब इजेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉकआउट। और दिस इज योर pressure pad to hold the blank, and then we'll continue with the drawing in next class. Acha, you tell me, I have covered up injection molding, no? Harsh? Yes sir, yes sir. Injection molding is done, no? हाँ हो गया सर। हो गया ना, हाँ, because that is also important, no? ठीक है, we'll continue next class। Sorry, हाँ, आपको अभी दूसरा लेक्चर है। Thank you so much। अरे let me take attendance first, just quickly। शौनक एब्सेंट ना, हाँ, बाबोस प्रेजेंट सर। बालेराव प्रेजेंट सर। वेदांत सर शौनक इतना प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, ठीक है। वेदांत प्रेजेंट सर। डैनिश प्रेजेंट सर। डिमेलो शेल्डन प्रेजेंट सर। एलरॉय Present टाइसन sir. Present sir. Elroy present sir. सर। या टाइसन प्रेजेंट सर। सैफ प्रेजेंट, मानसी प्रेजेंट सर। ओम प्रेजेंट, प्रेजेंट लोपेज सर। शेल्डन लोपेज, प्रेजेंट सर। शेनन लोपेज सर, लीला नायक एब्सेंट, समीक्षा नायक एब्सेंट, प्रेजेंट सर। ध्रुवी प्रेजेंट सर। रॉड्रिक्स एल्ड्रे प्रेजेंट सर। शैनल रॉड्रिक्स प्रेजेंट सर। रुमाओ त्रिवेदी has present Present. and Archis। Present Okay, sir. thank you Hello sir. yeah। हाँ सर, आपके मतलब ये सब्जेक्ट के लिए कोई टर्म वर्क है क्या? No, there is no term work and there is no oral also। Nothing is there. No, Okay sir. Thank you sir. only semester exam 80 marks का और unit test 20 marks का, 100 marks। सर प्लीज क्या जो शेयर मतलब अभी सर ने हमको वसीम सर ने बोला कि अभी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप क्या क्लासरूम पे इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर कर सकते हैं?
यस यस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने दिए हैं और आई विल शेयर द क्वेश्चन बैंक आल्सो व्हाट एवर पॉसिबल. ठीक है. हाँ सर, क्वेश्चन बैंक और सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना आपके हिसाब से वो सब सर क्लासरूम पे शेयर कर दो प्लीज. यस 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 यस. अभी यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल दिया है क्या सर ने? नहीं 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 सर, नहीं ना? मतलब हाँ, हाँ. हाँ. ओके सर. ये जो गोयल का जो बुक है ना, गोयल का बुक, यू जस्ट हाँ. रिफर दैट ओनली. गोयल. ओके सर. ओके चलो. हेलो सर, थैंक यू. क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा ना सर? क्वेश्चन बैंक आई विल गिव यू नो क्वेश्चन बैंक. ओके ओके सर. सर मोस्टली क्वेश्चन बैंक में से आएगा ना सब? हाँ एटलीस्ट यूनिट टेस्ट के लिए तो क्वेश्चन बैंक के लिए आएगा. थोड़ा सेमेस्टर के लिए यू हैव टू बी थोड़ा आपको ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, मतलब बुक में से. सर आप सेमेस्टर के लिए मतलब- लास्ट 3 इयर्स के थोड़े पेपर शेयर कर दोगे क्या सॉल्यूशंस के साथ? ये तो अभी सब ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन का कुछ है ही नहीं. हाँ. सर तो अभी मतलब जो एग्जाम कंडक्ट हुआ इसका क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस आप सेंड कर सकते हो क्या क्लासरूम पे? अभी जो हुआ है देखता हूँ मैं, मिलेगा तो मैं शेयर करता हूँ. सर एक रेफरेंस मिल जाएगा ना उससे एंड सेम के लिए? आई विल ट्राई. हाँ आई विल सर ट्राई. मानसी कोतरे हाँ बोला. सर मेरी प्रेजेंट ही लगी है क्या? मानसी की- कोतरे का. हाँ ठीक है. यू जॉइन नाव होगा आता आलीस का एंडला. Did you join at the end? सर सर मीटिंग सोडू का सर? चालेल का? दुसरं ओके लेक्चर ओके आहे. ठीक है. चलो लेट्स स्टॉप. थैंक यू सर. या वेलकम.